Good morning, children. Today, our topic is magnetic effect of current, and already I defined Oersted experiment, which is explained, which was explained 1820. Uh, that experiment is done south to north through the conductor over the magnetic needle, then north pole of the magnetic needle deflect towards the west. Already I explained. मैंने एक ट्रिक भी बताया स्नो SNOW यानी कि when current flowing south to north over a magnetic needle and north pole of the magnetic needle deflected towards the west, and that experiment done in 4 different ways. First, current is flowing south to north, then north to south over the magnetic needle, then north to south under the magnetic needle, and then north to south to north under the magnetic needle, and in each case just reverse current flowing and magnetic field. So that is just conclusion is कि when current is flowing, then magnetic field produced. It is clear. After that, Ampere's giving Ampere's swimming law. According to that, if current is flowing through, when we are swimming and current flowing through the leg to head, and then our north pole of the magnetic needle deflected towards left hand. और अब एक्सपेरिमेंट जो है जस्ट सिमिलर साउथ टू नॉर्थ ओवर द मैग्नेटिक निडल. अगर ये साउथ टू नॉर्थ फ्लोट कर रहा है तो वेस्ट जो होगा वो आपका लेफ्ट हैंड की तरफ होगा. और इस तरह से देन दैट एक्सपेरिमेंट आल्सो शोज कि व्हेन करंट इज फ्लोइंग साउथ टू नॉर्थ over the magnetic needle, then north pole of the magnetic needle deflected towards the west. उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर दिया और लेफ्ट हैंड की तरफ कहा. लेकिन तब क्या है कि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग नहीं सोचा, लेकिन नहीं, दैट इज परपेंडिकुलर प्लेन. और ये उन्होंने जब मैक्सवेल ने स्क्रू लॉ दिया, और ये तुम लोगों को बताया कि राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू कॉर्क स्क्रू लॉ कहते हैं मैक्सवेल का. तो उसके अनुसार इफ करंट फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, देन अदर फिंगर सोर्स the direction of magnetic lines of force, and it is in circular loop. Okay, or if it is up in upward direction, then it is the lines of force, direction of lines of force anti-clockwise. If downward direction, then lines of force is clockwise. And that experiment is done by the Maxwell. After that, we read about the magnetic field around the straight conductor, and we taken a plastic board, and one conductor passes through it, and key and rheostat and batteries and ammeters all complete the circuit by connecting it. After that, we found if we just kept on the plastic board some magnetic material like powder of iron or anything, nickel or cobalt, then we find that these are arranged when current is passes through the wire, then these iron fillings are just assembled in the circular loop around the conductor. This shows कि magnetic lines of force in circular of the conductor. और by magnetic field induction, magnetic field induced जो होगा, oh, that is calculated 2 into 10 to power minus 7. I is the current and R is the radius, distance from द कंडक्टर. यानी कि कंडक्टर से अगर मान लो कि यहाँ पे हम लोग लिए, तो ये डिस्टेंस के माने आपका जो करंट फ्लो करेगा वो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम लोग इस तरह से करते हैं. असल में हम लोगों का म्यू जीरो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम जो होता है उसके अनुसार हम लोगों का होता है, और 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7 होता है परमिटिविटी. तो ये इस तरह से हम लोगों का निकला. उसके बाद हम लोगों ने दूसरा किया एक्सपेरिमेंट कि एक सर्कुलर लूप लिया, और सर्कुलर लूप में हम लोग जब करंट फ्लो करवाए तो हम लोगों ने देखा कि
that also shows the lines of force according to the Maxwell screw law and right hand thumb rule, that shows the lines of force is just forward direction, and also when current flows this, and it is also and clockwise, and in middle the lines of force in forward direction. Then just we find that if we make the circular loop, then the lines of force all are doubled or tripled, depends upon the turns, and then in between the lines of forces, number of lines of force is just increases in comparison of straight conductor. And then magnetic field due to the current carrying circular coil is measured by the this formula, mu naught I by divided by 2r Weber per meter square. Here mu is the permittivity of the medium, and that value is 4 pi into 10 power minus 7. तो ये आपका और ये दिखा रहा है कि जब भी आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है ये सर्कुलर रूप में, ये लाइंस ऑफ फोर्स दिखा रहा है डायरेक्शन, और ये आपका आई करंट है जो कि आपको फ्लो कर रहा है, तो ये हम लोगों को दिखा रहा है। और करंट इसमें सबसे बड़ी बात है सर्कुलर रूप में कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो करंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इंक्रीज करेंगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट इंक्रीज करेंगे, और टर्न्स जब हम टर्न्स बढ़ा देंगे। और यही कहता है कि सोलेनॉइड व्हेन a conductor wrapped in number of turns and current passes through it, it behaves like a bar magnet, and it is called solenoid. सोलेनॉइड में रैप किया गया इस तरह से जैसे आप लोग स्प्रिंग देखते हो उस तरह से, और तब हम लोगों का यहाँ पे इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, नंबर ऑफ टर्न्स, मटेरियल ऑफ द कोर, एंड इट इज यूज्ड इन स्टार्टर ऑफ द व्हीकल्स, जिसको प्लग वगैरह कहते हो आप लोग। और ये आपका जो दिखा रहा है ये लाइंस ऑफ फोर्स, चूंकि हम लोग यहाँ से चलें तो अगर लाइंस करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकल रहा है, यहाँ नॉर्थ पोल क्रिएट होगा, और यहाँ अपवर्ड है तो आपका क्या हो गया, अपवर्ड है तो लाइंस ऑफ फोर्स अंदर की ओर जा रहा है, तो अंदर की ओर जा रहा है तो आपका यहाँ साउथ पोल क्रिएट हुआ, और इस तरह से इस साइड में साउथ पोल क्रिएट हो गया और इस साइड में नॉर्थ पोल क्रिएट हो गया। और आप जब करंट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो पोल का डायरेक्शन भी चेंज कर जाएगा। तो ये डिपेंड्स, डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन करंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। जैसे जैसे आप करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाइएगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ता जाएगा। और ये आपका यहाँ पे म्यू इक्वल टू के, म्यू 0 होता है, और म्यू 0 इक्वल टू होता है 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 टेस्ला पर एम्पियर मीटर, और ये रिलेटिव परमिएबिलिटी कहलाता है। तो परमिएबिलिटी और इसको परमिटिविटी कहते हैं। तो आपका ये जब निकला तो हम लोगों को देखे कि इसका कोर के मटेरियल पर डिपेंड करता है। और यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये डीएल है, और ये आई करंट है, ये डीएल इज स्मॉल अमाउंट ऑफ दी। तो यहाँ पे म्यू 0 आई एन वेबर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे ये देखा गया कि अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है लेकिन बाहर नहीं, बाहर आपका ये कम उतना ही रहता है जितना स्ट्रेट कंडक्टर में रहता है। ये अब है कि एम्पियर्स स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ line integral of b in dot dl, integration of that for a closed curve is equal to mu 0 times of net current through the area bounded in the curve। और ये एम्पियर्स ने कहा, और इसने ये इस तरह का आपका फॉर्मूला दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl इक्वल टू म्यू 0 i, और इस से हम लोग क्या किए कि हम एम्पियर लॉ से कभी भी मैग्नेटिक फील्ड फॉर द पर्टिकुलर पॉइंट, और इंटीग्रेशन इज द समेशन, एक तरह समझिए पूरे होल वायर के थ्रू। कहता है कि अगर कोई एक सोलेनॉइड जो कि आपको अभी बताया कि रैप कर दिए और करंट पास कराए तो उसमें से तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार की तरह बिहेव करता है। अगर ये बहुत लंबा कॉइल ले लें इस तरह का और उसको हम क्या करें सर्कुलर मोड़ दें, मतलब इस तरह से करके इस तरह से जोड़ दें, तो कहता है कि ये इन्फिनाइट
मतलब एंडलेस सोलेनोइड कहलाता है, और इसको टोरॉइड कहते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अब इसके बाद हम लोगों का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इफ एन insulated wire simply wrapped around the cylindrical object and current passes through it, then it behaves like a bar magnet। यानी कि सोलेनोइड में अगर कोर में हम मैग्नेटिक सब्सटेंस सॉफ्ट आयरन डाल दें तो ये आपका सोलेनोइड की जगह पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। इफ अ सोलेनोइड whose core is made of soft iron is called electromagnet, and magnetic field of strength of the magnetic electromagnet depends on the magnitude of current, direction of current, number of turns and material of the core। ये देख रहे हो, ये आपका प्लस और माइनस। तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट इज द मैग्नेट दैट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तभी ये। अनलाइक परमानेंट मैग्नेट, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन इजीली बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट फ्लोज थ्रू इट एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। द पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन इवन रिवर्स बाय रिवर्सिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसका यूज बहुत जगह होता है, इलेक्ट्रिक बेल में होता है, डायनोमो में होता है, ट्रांसफार्मर, टेलीग्राफ, टेलीफोन, इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर अलार्म एटसेट्रा। सो आज इतना ही। अगले दिन हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ेंगे और इसको। थैंक यू।